Okay. So I hope the differentiation between the two is clear for everybody. I'll just, if there are any queries up until now, so please feel free to ask. Dr. Sidra has raised her hand. G, do you have a question? Please put it in the box. If there isn't any question, so I'll move ahead. Okay. All right. Now coming to the periapical tissues. Okay, Dr. Tabassum asked summary of under and overexposure. Underexposed X-rays we do when we want to see the periodontal status of the tissues, because periodontium में आपकी bone आ जाती है, तो bone is comparatively less radiopaque than your teeth. Okay, so if you're going to give optimum exposure for an X-ray, so what that will do is that crestal bone is उसमें हो सकता है आपको radiolucent नजर आ जाए, because the X-ray beams are carrying a lot of energy because of the optimum exposure voltage. मतलब आपने 90 किलो वोल्ट्स या उस पे अगर आपने एक्सरे लिया है, तो हो सकता है इतनी हाई पावर्ड एक्सरे जो है वो थिन क्रिस्टल बोन के डायरेक्ट थ्रू चली जाएगी, एंड ऑन एन एक्सरे आपको लगेगा कि यहाँ तो जो है बोन लॉस हुआ है. सो इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर दिस व्हाट यू डू इज कि हम एक्सरे की जो वोल्टेज है वो हम कम कर देते हैं. 90 से लेट्स सपोज हम 60 पे ले आते हैं या 50 पे ले आते हैं. So what this does is this will produce X-ray beams which have a lower energy. तो जब वो lower energy होगी तो वो bone फिर भी कुछ ना कुछ उस X-ray beams को रोक पाएगी, and क्योंकि वो X-ray को रोक देती है वहाँ, तो it will register as a white spot on the X-ray. मतलब it will appear radiopaque. That area will appear radiopaque on an X-ray. So it will give you a more accurate determination of where is the height of the alveolar crest in that area. ठीक है, तो दांतों के लिए हम ऑप्टिमम एक्सपोजर देते हैं, और अगर आपने बोन हाइट्स चेक करनी है, पेरियोडोंटल स्टेटस चेक करना है, तो उसके लिए हम अंडर एक्सपोज करते हैं. तो दिस अंडर एक्सपोजर इज नथिंग एल्स बट जस्ट द रिडक्शन ऑफ द मेन वोल्टेज ऑफ योर एक्सरे मशीन. ठीक है, टू प्रोड्यूस लोअर एनर्जी एक्सरे बीम्स. ओवर एक्सपोजर हम नहीं करते. कोशिश हमारी होती है कि हम ओवर एक्सपोज ना करें, बिकॉज इट रिजल्ट्स इन अ जनरली ब्लैक फिल्म. तो वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ब्लैक सी फिल्म होती है, उसमें आपको फिर कुछ नजर नहीं आता. इट्स नॉट वेरी क्लियर. ठीक है, सो आई होप दैट इज क्लियर. डॉक्टर तबस्सुम. ओके, फैंटास्टिक. अच्छा, नाउ कमिंग टू periapical tissues. Okay. Now what I'm going to do is randomly participants में से एक बंदे को I'll just call out their name. आप अपने आप को unmute कर दें and just answer what you see in this X-ray. So I'll start with the first one, Dr. Amna Asad. If you can I'll unmute you. So kindly tell me, what do you see on this X-ray, please? Sir, it's an erupting third molar. It is an erupting third molar. इसमें आपको नजर आ रहा है जी. और कुछ इस X-ray में नजर आ रहा है आपको? Yes, sir. So it's surrounded by cyst. Integer cyst might be, and the incisive canal. Incisive canal नहीं, ये तो ID canal होगी ना आपकी लोअर की. ID canal. Yes, sir. जी, ठीक, सही है. और सर, third molar surrounded by. Yes. Third molar क्या? Surrounded by dentigerous cyst. I think so. Dentigerous cyst. अच्छा, चले that I'll discuss later on कि when will you say कि ये probably इसमें cystic change हो रही है और कब it's a normal follicular width. I'll discuss that later. But चले, thank you very much. So this is basically how a third molar looks like when it's starting to develop. इसकी start में orientation इसी तरह horizontal होती है, and steadily जब इसकी root formation होती है तो it uses the distal root of this 7 as a ramp,
to erupt upwards. अपनी position इससे वो straight कर लेता है and it erupts into the oral cavity. Provided यहाँ 7 के पीछे एरिया में इतनी bone हो, तो अगर नहीं होगी तो it will stay in a horizontal position और अगर and will stay impacted. लेकिन अगर इसको space मिल गई तो ये upright हो जाएगा and it will become hopefully a normal and functional too. ठीक है? So thank you Dr. Amna. अच्छा जी, coming to the next X-ray. Okay, again I'll so next participant हमारे पास है someone who has written their name as 123. So Dr. Saab, I'm going to unmute you and can you kindly tell me what is in this X-ray? या आप अपने आप को unmute कर दें and please tell us what do you see in this X-ray? Ward lines जो है Dr. Nahal, that I'll discuss on an OPG क्योंकि the periapical X-ray is not the best X-ray for that. ठीक है, so I'll discuss ward lines on that, inshallah. Dr. 123. फिलहाल जो भी हैं they're not responding. I'll go to the next candidate, Dr. Ayman. I'm going to unmute you, or you can unmute yourself, please. Ji, please, can you kindly tell us what you see in this X-ray? Sir, there is root formation. Ji, excellent. किन किन दांतों में आपको रूट फॉर्मेशन नजर आ रही है? Sir, 7 molars and the premolars. Molars and premolars. अच्छा, first molar में तो I think almost root formation complete sir, है. First molar जी और सर साइड पे कैरीज हैं I guess रेडियोसेंस की जो दिख रही है. जी, excellent. So you have a distal carious lesion on the 7 and in first two premolars के apices भी आपको open नजर आ रहे हैं और इसके भी open नजर आ रहे हैं, मतलब इसमें अभी root formation जो है वो चल रही है अभी. ठीक है, so thank you very much Dr. Rahman. Welcome sir. जी, coming to the next X-ray. So let's see who is next. Dr. AZ. Acha. Doctor, can you kindly unmute yourself and please tell us कि आपको इस X-ray पे क्या नजर आ रहा है? AZ does not seem to be responding. Shall I go to the next candidate, Dr. Dania Hamid. Dr. Dania, are you with us? You seem to have lost her as well. Okay, next I'll go to Dr. Aisha. Can you kindly unmute yourself and tell us what you see in this X-ray? I hope none of you are feeling shy or challenged because I'm making you do it. It's just कि आप लोगों की practice हो जाए. So you know what you are facing when you will be doing your private practice or जब आपकी trainings या hospital jobs चल रही होंगी. So there is no such thing again as a wrong answer or anything. I just want कि आप लोगों की practice हो जाए. And I believe since it's a big lecture, I don't want to bore you. आप लोगों का इंटरेस्ट होगा, so I feel कि आप लोग कुछ ना कुछ सीख लोगे इससे. So Dr. Aisha is again also not responding. I'll go to the next candidate. We have Dr. Mohammed Siddiq. Sir, if you can, sorry, Ji, can you kindly tell us what you see in this X-ray? Sir, radiological slide is showing upper, central, lateral और canine. इनमें से probably क्योंकि anatomy थोड़ी सी different है इसकी,
तो क्लियर नहीं कर सक रहा, और साइनस फ्लोर भी नजर आ रहा है, प्री मोलर जी मोस्ट प्रॉब्ली प्री मोलर है वो, उसका एक कस्प नजर आ रहा है। और मैक्सिलरी साइनस का शायद ये जो व्हाइट एरो बना हुआ है, ये सारा स्ट्रक्चर आपको क्या लग रहा है, ये क्या है? सर ये साइनस फ्लोर लग रहा है मुझे, साइनस शायद। फ्लोर लग रहा है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक है। अच्छा, सर और यूजुअली जब पैथोलॉजिकल लीजन्स वगैरह थोड़ा सा गाइड कर देंगे इसमें? इसमें कोई पैथोलॉजी नहीं है, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन कि अच्छा, ये और इसमें सर साइनस कैविटी फ्लोर आपको क्यों क्यों फिलिंग भी हुई है सर? सॉरी सर टूथ रिकॉग्नाइज कर लेंगे, लेटरल है और सेंट्रल है। ये जो है ये आपका केनाइन है, विच यू कैन अच्छा, ये अप्रिशिएट बाय कैनाइन हो इट्स गया। लॉन्गेस्ट रूट, और ये प्रीमोलर है उसके साथ। एंड आप ठीक कह रहे थे कि इसमें कोई फिलिंग भी हुई है, तो यू राइट अबाउट दैट, ठीक है। अच्छा, द रीजन सर आपको रिपीट कर मैक्सिलरी, दें सर, सर दिस थोड़ा इज सा द कॉल आ केनाइन, गया। दिस इज द केनाइन विच यू कैन अप्रिशिएट बिकॉज इसकी रूट लेंथ इज द लॉन्गेस्ट। तो दिस इज योर केनाइन, जिसमें मैंने फिलहाल अपना कर्सर लगाया हुआ है। इसके साथ जो है दिस इज योर प्रीमोलर, और एंड फिलिंग भी हुई है सर? जी इसमें एक ओक्लूजल फिलिंग हुई हुई है, एंड जजिंग बाय इट्स रेडियोपेसिटी इट्स प्रोबब्ली कोई मेटालिक फिलिंग है, शायद अमलगम होगी, ठीक है। एंड जी सर। द रीजन आपको मैक्सिलरी साइनस इतना नीचे नजर आ रहा है इज बिकॉज के साइनस की न्यूमेटाइजेशन हुई है, एंड न्यूमेटाइजेशन अकर्स जब आप एक्सट्रैक्शन कर लेते हो तो वहां बोन रिजॉर्प्शन उस एरिया में हो जाती है, तो इट गिव्स द साइनस रूम टू ग्रो, ठीक है। सो the sinus has now almost reached to the level of the alveolar crest according to this x-ray. तो let's suppose अगर आपने इस एरिया में इम्प्लांट लगाना है तो आपको बोन हाइट नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ द साइनस लिफ्ट साइनस। करना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, आपको साइनस लिफ्ट करना पड़ेगा टू रिस्टोर द हाइट, एंड उसके बाद आप इसमें इम्प्लांट लगा सकते हो, ठीक है। तो अच्छा, यस 6 इज नॉट प्रेजेंट, 5 और 6 प्रॉब्ली दोनों एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। ये जो आपको इस एक्सरे में सबसे डिस्टल मोस्ट टूथ नजर आ रहा है, दिस इज प्रॉब्ली द 7। अच्छा, डॉक्टर मेरीन कह रही इज देयर वाइटनिंग ऑफ लैमिना ड्यूरा एज वेल? इट कुड बी, हो भी सकता है। जहां से मैंने पिक्चर उठाई है अलबत्ता उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया था कि ये वाइडनिंग है या नहीं है, बट जो ब्लैक एरोज हैं ये बेसिकली आपकी पीडीएल स्पेस की तरफ आपको पॉइंट करवा रहे हैं, और ये दो जो ब्लैक एरोज हैं विच आर अंदर से ट्रांसपेरेंट हैं, ये बेसिकली वो लाइनिंग कंटिन्यू हो रही है साइनस की। इफ यू जस्ट फॉलो माय कर्सर, तो ये यहाँ से जा रही है, इट इज क्रॉसिंग द टीथ एट दिस लेवल, और यहाँ से फिर ऊपर जा रही है, ठीक है। तो जो बीच में ये दो लाइंस आप ब्लॉक एरोज नजर आ रहे थे ना, ब्लैक वाले, तो ये बेसिकली वो साइनस का शैडो जो है, साइनस की लाइनिंग कंटिन्यू होके जा रही है, ठीक है। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। यस, वर्टिकल एल्वेलर बोन रिजॉर्प्शन अगेन हुई भी है ड्यू टू साइनस न्यूमेटाइजेशन, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर मारिया। अच्छा जी, गोइंग अहेड, चलें नेक्स्ट पार्टिसिपेंट के पास जाते हैं। सो वी हैव डॉक्टर सहरिश, I'm going to unmute you. Can you kindly tell us what do you see in this X-ray? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैं इससे जो पहला वाला एक्सरे था उसमें बोलना चाहूंगी वो, क्योंकि जब हम पेरियापिकल लेते हैं मैक्सिलरी साइनस में तो वहाँ पे स्कैलपिंग हो रही होती है जी जी, और वो स्कैलपिंग है उसमें, और सर उसमें जो पीछे एक शेड आ रहा है तो हमें पीछे पोस्टीरियर वॉल का शेड भी तो दिख रहा होता है मैक्सिलरी साइनस में इट पेरियापिकल कुड में, बी, हो भी सकता है, तो वो हो भी क्या सकता वही है। है सेम? हाँ वो साइनस ही होगी। अगेन आप नोट करोगे ठीक कि वो एक्सरे जो है वो प्रॉब्ली बाइसेक्टिंग एंगल से लिया गया है, तो क्योंकि बाइसेक्टिंग एंगल से है फिर जी आप सर। साइनस का शैडो ज्यादा प्रोमिनेंट होता है इन अपर पोस्टीरियर पेरिएपिकल्स में, तो उसमें एनाटॉमी जो है वो आपको ज्यादा आप कंफर्म नहीं कह सकते हो कि ये है और ये वो है। इट वुड हैव बीन बेटर अगर पैरेललिंग टेक्निक से हम ले, हमें ज्यादा अच्छा आइडिया होगा कि बाकी इसमें साइनस कितने लेवल तक नीचे आई हुई है। इसमें तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल एल्वियुलर क्रेस्ट तक साइनस जो है आपकी न्यूमेटाइज हो चुकी है, ठीक है। जी तो सर। अच्छा जी, जी इस एक्सरे के बारे में काइंडली प्लीज बता दें, व्हाट डू यू सी इन दिस एक्सरे? सर पेरियापिकल एक्सरे है जी सर, इज दैट पेरियापिकल? जी जी, पेरिपेकल है।
अच्छा इसमें बॉर्डर्स जो दिख रहे हैं वो दो दो शेड्स जो आ रहे हैं सर। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, आप ये जिसके ऊपर ये दो आरोस बने हुए हैं, यू थिंक दिस इज अ बॉर्डर? सर यहाँ पे तो कैनाल होनी चाहिए। यहाँ पे कनाल होनी चाहिए, अच्छा ठीक है। तो कनाल तो नहीं नजर आ रही है, तो मतलब ये कुछ और किसी और स्ट्रक्चर का शैडो होगा फिर। जी सर कोई शैडो आ जी, रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक इट इज? सर बॉर्डर का ही शैडो हो सकता है, और क्या है यहाँ पे, कुछ और स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ वेल अच्छा, डॉक्टर एजी हमारे साथ वापस आ गए हैं एंड दे हैव गेस्ड इट करेक्टली कि ये आपकी बेसिकली वो है इंटरनल ऑब्लिक रिज है बेसिकली। आपको अगर डेंटल रेडियोग्राफिक एनाटॉमी वाला लेक्चर मेरा याद हो तो मैंने उसमें आपको कहा था कि आपकी ये जो रेडियोपेक डेंस लाइन होती है ना, इसके डायरेक्टली नीचे आपका ये रेडियोलूसेंट एरिया मैंडिबुलर फॉसा होता है। तो ये उसका इंटरनल ऑब्लिक रिज जो होती है, ये उसका सॉर्ट ऑफ इन अ वे आप इसको रूफ कह सकते हो। तो दिस लाइन जो है ये आपकी बेसिकली इंटरनल ऑब्लिक रिज है, ठीक है। आईडी कैनाल जो है इसमें नहीं आई हुई है, इस एक्सरे में नहीं है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली योर इंटरनल ऑब्लिक रिज है। एंड आपको 6 में भी कोई रेस्टोरेशन नजर आ रही, लेकिन अगेन एक्सरे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है क्योंकि क्राउन इसमें आपको नहीं नजर आ रहे। 7 जो है इसमें भी कोई फिलिंग हुई हुई है और यहाँ अभी भी कोई रेडियोलूसेंसी है, तो मतलब या तो फिर से केरी स्टार्ट हो गई है या जो टूथ का कोई वॉल है या कस्प है वो फ्रैक्चर हो गया है। एंड इस ये जो एरिया भी मैं अपने पॉइंटर के साथ मार्क आउट कर रहा हूँ, ये भी कुछ ना कुछ रेडियोलूसेंट है। इट मींस के इस फिलिंग के नीचे शायद सेकेंडरी केरीज भी स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। So this is everything that you can see in this periapical X-ray. ठीक है, अच्छा चलिए जी, मूविंग फॉरवर्ड। सर मोस्ट प्रॉब्ली डिसलॉज फिलिंग हो सकती है। प्रॉब्ली हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। और फिलिंग के साथ अक्सर कस भी टूट जाता है, तो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा जी, कमिंग टू दिस नेक्स्ट एक्सरे, और ये आप लोग शायद कुछ ना कुछ पहचान लोगे क्योंकि ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी वो किया था। So let's go to the next participant, Dr. Ahmed. I'm going to be unmuting you, sir. So please, if you could kindly tell me what do you see in this X-ray? Sir, it is an PA X-ray of I think upper left side, showing premolars and first and second molar, and according to me, it's supposed to be a floor of the sinus which is interacting. फ्लोर ऑफ द साइनस, इसमें आप किसको कह रहे हैं, जिस पे एरोज बने हैं या जिस पे एरोज नहीं बने? वाइटिश एरो जो आ रहा है, वाइटिश एरो, अच्छा। तो ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर अभी मेरा कर्सर जा रहा है, व्हाट डू यू थिंक दिस इज? I think it's the cementose root, maybe bulbous kind of. बल्बस टूथ इतना इस तरह का जाएगा जिस तरह जो शेप मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। सेकंड प्रीमोलर हो सकता है उस पर कर्सर मूव कर रहे हैं आपसे। हाँ, जो जहां मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये इस तरह सेमी सर्कल टाइप शेप जो मैं बना रहा हूँ। फिर ये शैडो किस चीज का है? अगर आप कह रहे हैं कि ये एरो वाला एरिया मैक्सिलरी साइनस का शैडो है। सर आई एम नॉट टोटली श्योर अबाउट इट। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, वी आर ऑल हियर टू लर्न। जो स्ट्रक्चर अभी मैं अपने कर्सर के साथ ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज बेसिकली योर मैक्सिलरी साइनस, ठीक है। एंड आई टोल्ड यू कि आपको अपर आर्च में ज़ाइगोमैटिक बटरस का शैडो नजर आएगा। तो ये जो एरिया डेंसली रेडियोपेक सा आपको नजर आ रहा है, ये सारा ज़ाइगोमैटिक बटरस का शैडो है बेसिकली, ठीक है। आई थिंक सम ऑफ देम, जी डॉक्टर मारिया गेस्ड इट करेक्टली, एंड एक दो और गेस, डॉक्टर रेमन, डॉक्टर सना, सबने करेक्टली गेस किया। ये आपका बेसिकली ज़ाइगोमैटिक बटरस का शैडो है, ठीक है। ज़ाइगोमैटिक आर्च आपको पेरिविकल एक्सरे पे नहीं नजर आएगी, यू माइट सी दैट ऑन एन ओपीजी बट नॉट ऑन अ पेरिविकल एक्सरे, ठीक है। माइलोहाइड रिज, डॉक्टर लबीवा ने कहा है नहीं डॉक्टर साहब, माइलोहाइड रिज ये तो अपर का एक्सरे है ना, माइलोहाइड रिज तो आपको लोअर के एक्सरे में नजर आएगी, ठीक है। सो आई होप आपकी ये चीज इससे कंफ्यूजन चली जाएगी, ठीक है। सो या आई थिंक शायद माइलोहाइड रिज आप प्रीवियस स्लाइड के ऊपर कह रही थी, मैं अभी देखने
देखा है मैंने शायद। अच्छा जी, चलिए, coming to the next periapical, let's see who the next participant is. We have Dr. Hassan Raza. Sir, if you can unmute yourself and please tell us what do you see on this X-ray. ठीक है, sorry Dr. Labia, my bad. Sure, Dr. Leila is saying zygomatic buttress, वो जो रेडियोपेक शैडो आपको नजर आ रहा था जहां एरोस थे, वो zygomatic buttress थी basically. That's all I was saying, nothing else. ठीक है, बटरस का शैडो आपका अपर 6 और 7 के एरिया में नजर आता है जी। डॉक्टर हसन रजा सर, Dr. Hassan is not responding. चलिए, I'll go to the next participant. Galaxy A50 जी, आप काइंडली बता सकते हो कि इस एक्सरे में क्या नजर आ रहा है आपको? Okay, we have another non-responding participant. Chale, I'll go to the next one. Dr. Hawa Jabbar. Can you please share what do you see on this X-ray? Sir, the arrows are pointing towards the periapical pathology under the premolar and medial whitening under the molar, the mesial root. ठीक ठीक, तो what do you suspect? और इसमें आपको क्या नजर आ रहा है periapical उसके अलावा, changes के अलावा? Sir, the cortical bone is a bit, what do you say, how? Use a layman term, खैर अगर आप कोई specific term आपके ज़हन में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। जी, Dr. Hawa, are you with us? जी sir, yeah, under the sir furcation जो molar की उसके नीचे भी widening radiolucency है, so maybe there's bone loss there as well. ठीक, अच्छा, ये तो periapical हो गया, और कुछ क्राउन्स के बारे में आप कहना पसंद करेंगी? किसके बारे में सर? सॉरी, क्राउन्स के बारे में, क्राउन एरिया ऑफ द एक्सरे ऑफ ऑल 3 टीथ, उसमें कुछ नजर आ रहा है आपको? सर पॉकेटिंग बोन लॉस से फील हो रही है उधर। बिल्कुल, और कुछ? सर द कांटेक्ट पॉइंट विद मोलर और प्री मोलर का जो है उसमें भी इट फील्स वेरी टाइट, लाइक यू नो फॉर फूड इंपैक्शन, तो उस वजह से बोन लॉस जैसे एक होता है, पॉकेट बन रही है। ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल। वी कैन सी टू क्राउन्स ऑन द मोलर एंड फिलिंग एंड रेस्टोरेशन इन द प्री मोलर। ठीक है, फैंटास्टिक, ठीक है। तो यू हैव फिलिंग इन द प्रीमोलर, और यहाँ फिलिंग के नीचे हो सकता है ये मे बी आर्टिफैक्ट हो सकता है ना हो सकता है यहाँ शायद कुछ केरीज डेवलप हो रही हैं। देयर इज अ स्लाइट रेडियोलुसेंट एरिया जहां मेरा भी कर्सर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे डॉक्टर एग्जैक्टली रेस्टोरेशन के नीचे भी देयर सीम्स के यहाँ भी कुछ हॉरिजॉन्टल बोन लॉस हुआ है। इस दांत के ऊपर क्राउन है, ठीक है, इस दांत के ऊपर भी या तो क्राउन है या कोई बहुत ही एक्सटेंसिव फिलिंग हुई है। यहाँ 6 में जैसे आई थिंक शायद डॉक्टर मारिया ने कहा है, देयर इज फर्केशन इन्वॉल्वमेंट इन दिस। यहाँ अगर आप नोट करो तो ये लैमिना ड्यूरा थोड़ा आपको ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, एंड रेडियोलुसेंसी इस एरिया में आपको नजर आ रही है। देयर इज मे बी सम फर्केशन इन्वॉल्वमेंट इन दिस। ये 5 के ऊपर ये जितने बड़ा एक सर्कल सा मैं बना रहा हूं, तो दिस अपीयर्स टू बी a periapical granuloma or maybe a radicular cyst, ठीक है। there is a यहाँ आप देख, sorry, it's a pathology but we cannot diagnose it only on exactly, आप एक्सरे पे डायग्नोज तो नहीं कर सकते, आप सिर्फ वो दे सकते हो, एक डिफरेंशियल दे सकते हो कि what it might be, ठीक है ना? जी। अच्छा, 6 के मीजियल रूट में यहाँ एपिकल एरिया में आपका पीडीएल वाइडनिंग नजर आ रही है, और इस पोर्शन में भी थोड़ी नजर आ रही है। तो अगेन हो सकता है कि यहाँ भी कुछ पीडीएल वाइडनिंग हो रही है बिकॉज ऑफ सम फॉर्म ऑफ पेरिडोंटाइटिस,
ठीक है? जी जी. So this is what you see in this X-ray. ठीक है, thank you Dr. Hawa. अच्छा, Thank you, sir. welcome. अच्छा जी, let's go to the next X-ray. And next participant हमारे पास हैं Dr. Hina. So Dr. Hina, I'm unmuting you. Can you kindly tell us what you see in this X-ray? Dr. Hina? Not getting a response out of Dr. Hina. So chalein, let's go to the next participant. Honor, I think शायद mobile devices sign in किया हुआ है. Doctor, can you please tell us what you see on this X-ray? अच्छा, Dr. Hassan Raza is online. चलें, Dr. साहब जी, can you tell us what you see on this X-ray? So we can differentiate in the second premolar a well-defined pathology. ठीक. What about the central? Central के ऊपर भी दो arrows बने हुए हैं, उसके ऊपर आप कुछ comment करना पसंद करेंगे? We have PDL widening, the जी. mesial root of 6. ठीक. अच्छा. Improperly differentiated lamina dura. ठीक. Generalized interdental bone loss. ठीक. और कुछ? दांतों के बारे में कुछ कह सकते हैं आप कि आपके ख्याल में इनमें क्यों पेरिएपिकल रेडियोलुसेंसीज नजर आ रही हैं आपको? Especially regarding the size of the pulp chamber. ये pulp chamber का size या root canal का size आपको normal लग रहा है? Do you think this is excessively wide? No, sir, it's not looking normal. It's not looking normal. ठीक है. तो this is typically a picture you see after आप एक patient की RCT start करते हो, आपने pulpectomy कर ली है, preparation कर ली है, तो पेशेंट का पेन खत्म हो गया. नेक्स्ट विजिट जब आप उनको ऑब्जर्वेशन के लिए बुलाते हो, वो आते ही नहीं हो, कहे भाई बस दर्द खत्म हो गया, अब कोई जरूरत नहीं है. तो बेसिकली दिस इज अ पिक्चर यू आर सीइंग ऑफ एन अनऑब्जर्वेटेड रूट कैनाल व्हिच हैज बीन डन इन द सेंट्रल इंसाइजर एंड योर लैटरल इंसाइजर. नॉर्मली आपको एक्सरे पे पल्प चेंबर्स इतने वाइड नहीं नजर आते, ठीक है ना? तो दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन that you are seeing a huge periapical radiolucency which is surrounding the apices of 2 and the beginning of a periapical radiolucency around the central incisor. ठीक है, again due to a lack of obturation. ठीक है जी. अच्छा, इसमें जी सर जो सेंट्रल इंसाइजर है उसमें मोस्ट प्रोबेबली ओवर फाइलिंग की वजह से, एक्सटेंडेड फाइलिंग की वजह से भी पेरियापिकल जो रिजॉर्प्शन, बोन रिजॉर्प्शन भी हो सकती है. डेफिनेटली, एंड आई वुड डेफिनेटली एग्री विद यू ऑन दिस रिगार्ड कि आप लैटरल में देखें तो आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन इस तरह वो टनल शेप हो रही है, एंड में इट्स लाइक बिकमिंग कंस्ट्रक्टेड. लेकिन ये टाइप वो जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको इस दांत के एपिकल एरिया में नहीं नजर आ रही है. तो प्रॉपर एपिकल स्टॉप जो है वो शायद आपका बना ही नहीं है. यू गॉन थ्रू द एपेक्स एंड प्रॉब्ली यू आर राइट कि ये ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से ये हाल हुआ है दांत का. प्रॉब्ली इसमें परफोरेट उसने कर दिया होगा एपेक्स को. ठीक है, सो थैंक यू फॉर दैट एडिशन. वो मेरे जहन में ये बात नहीं आई थी, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. अच्छा, डी के बारे में कमेंट करना चाहेंगे आप? डी में भी रिलेटिवली सिमिलर प्रेजेंटेशन है. डॉक्टर हसन?
अच्छा, डॉक्टर बसुम ने भी एक अच्छी सजेशन दी है कि इट कैन बी ड्यू टू इंटरनल रूट रिजॉर्प्शन दैट लीड्स टू वाइड कैनाल इन एपिकल पैथोलॉजी। बिल्कुल डेफिनेटली हो सकता है। एक्सरे पे वही ना कि हम डिफरेंशियल दे सकते हैं, हम डायग्नोज तो नहीं कर सकते। डायग्नोसिस इज ऑलवेज अ मिक्सचर ऑफ योर पेशेंट्स हिस्ट्री एंड क्या कहते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स, तो उसके बेस पे आप यू कैन कम टू अ डायग्नोसिस अलोंग विद एन एक्सरे। अच्छा, डॉक्टर एमन इज आस्किंग इफ इट इज नॉन रिजॉल्व पैथोलॉजी ड्यू टू अंडर ऑब्जर्वेशन। इट इज नॉट ड्यू टू अंडर ऑब्जर्वेशन, इसमें ऑब्जर्वेशन हुई नहीं है। अगर ये अंडर ऑब्जर्वेटेड होता तो इसमें आपको व्हाइट जीपी कोन्स नजर आ जाते हैं ना, गटा पर्चा कोन्स आपको नजर आ जाते हैं, तो उसकी वजह से इसमें आपको नजर ही नहीं आ रहे। तो इट मींस कि आपने पल्पेक्टमी प्रिपरेशन और पल्पेक्टमी इसमें की है, उससे आपने पल्प चेंबर को वाइड कर दिया है। सो दैट्स व्हाई पल्प चेंबर इसमें आपको वाइड नजर आ रहा है। लेकिन पेशेंट हैज नॉट कम टू यू फॉर द थर्ड अपॉइंटमेंट जिसमें आप इसमें इस कनाल को ऑब्जर्वेट करते हैं, बिकॉज यू कैन ऑब्वियसली सी इसमें कोई जीबी कोन आपको नजर नहीं आ रहा है। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इट इज अ नॉन ऑब्जर्वेटेड टूथ। उसमें नॉन ऑब्जर्वेटेड टूथ को आप वैसे ही छोड़ोगे तो उसमें तो बाद में इन्फेक्शन डेवलप होनी है, ठीक है ना। So that is what I meant. I didn't say under observation. I'm saying it is completely non-obturated. ठीक है? अच्छा. So apex. अच्छा, डॉक्टर ये पूछ रही है, is apex completely formed in X-ray? Yes, I think X-ray is completely formed. मुझे sorry, apex is completely formed in the X-ray. मुझे इस तरह कोई साइन तो नहीं नजर आ रहा कि वो नहीं है. अच्छा, somebody is asking about apical lesion, please. लेटरल हो चुका है जी सर, लेटरल एपेक्स फॉर्म हो चुका है, इसलिए हम सस्पेक्ट ये नहीं कर सकते कि सेंट्रल की एपेक्स नहीं हुई होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली। आप यू कैन गो फ्रॉम नोन टू अननोन। आपको टूथ के इरप्शन टाइम्स का पता हो तो यू नो ऑब्वियसली कि सेंट्रल पहले निकलता है, उसके बाद लैटरल निकलता है। तो ऑब्वियसली अगर लैटरल की एपेक्स बन चुकी है और वो क्योंकि सेंट्रल से के बाद निकलता है, तो इसका मतलब है कि सेंट्रल में भी डेफिनेटली एपेक्स फॉर्म हो चुकी होगी। तो अगेन एन एक्सेलेंट पॉइंट डॉक्टर हसन। अच्छा, इस डी में भी यू आर सीइंग यूनिलॉक्यूलर रेडियोलुसेंसी, ठीक है, विच इज सराउंडिंग द एपिसेस ऑफ द सेंट्रल इंसाइजर्स। ये हम लोअर एक्सरे जो है बेसिकली हम वो देख रहे हैं। इट इज रिलेटिवली वेल डिफाइंड, ठीक है, रेडियोलुसेंसी है और इसमें भी आपको एक रूट की एपेक्स जो है वो आपको थोड़ी सी रिजॉल्व नजर आ रही होगी, दूसरी की एपेक्स फिर भी रिलेटिवली इट सीम्स ऑलराइट। बाकी दांतों में कोई पैथोलॉजी ऐसा नहीं नजर आ रही कि भाई कोई कैरीज की वजह से ये हुआ है या मे बी दांत टूटा हुआ है या समथिंग, उसकी वजह से पल्पल डेथ हुई है। पल्प चेंबर भी रिलेटिवली नॉर्मल प्रोपोर्शंस का लग रहा है, तो प्रॉब्ली ये रिजॉर्प्शन भी शायद नहीं है। तो प्रॉब्ली व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन कि इसमें पेरिपिकल सिस्ट या वो बना हुआ है? कैरीज नहीं है, फ्रैक्चर नहीं है, तो व्हाट कुड बी द रीजन? Anybody? I don't think इसमें pockets हैं. Yes, traumatic dental injury हो सकती है। तो ये पेशेंट प्रॉब्ली अच्छा खासा दांतों ने जोर लिया है, कोई स्पोर्ट इंजरी हो सकती है, कुछ और डोमेस्टिक वायलेंस की कोई इंजरी हो सकती है जिसकी वजह से द टूथ बेसिकली एक्सपीरियंस्ड पल्प नेक्रोसिस। तो ये दांत अगर आप क्लिनिकली देखोगे दे विल प्रॉब्ली अपीयर मोर रेडियोपेक, जरा येलोइश सा टिंज होगा इसका या मे बी थोड़ा ब्लैकिश सा टिंज होगा इनका कंपेयर टू द नॉर्मल सराउंडिंग टीथ। तो ये ट्रॉमेटिक डेंटल इंजरी की वजह से प्रॉब्ली इसमें पल्प नेक्रोसिस हुई है एंड दैट पल्प नेक्रोसिस हैज नाउ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ए रेडिकुलर और पेरिएपिकल सिस्ट। ठीक है, तो वेरी गुड डॉक्टर अनुराशा। अच्छा जी, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। We have 5 minutes left, so let's talk briefly about this. Next हमारे पास participant कौन है? Let me see. Dr. Hina and Honor wasn't responding. Dr. Lebiba, I'm going to be unmuting you. Please, can you kindly describe what you see on this X-ray? Sir, this is the periapical X-ray of the lower teeth. Here we can lower 5 associated with some periapical widening of periodontal ligament space, and there is the there is increased density of bone surrounding this radiolucency. And
What about crown portion? Crown portion में आपको कुछ नजर नहीं आ रहा? जी restoration है. बिल्कुल. Crown seems and और कुछ नजर आ रहा है आपको? दो दांतों के दरमियान? बोन डेंसिटी इंक्रीज हुई है जिसकी वजह से ऑब्सक्योर हुआ है लेमिना ड्यूरा ऑफ द एक्सीलेंट ठीक. व्हाट डू यू थिंक दिस रेडियोपेक ये सेमी सर्कुलर रेडियोपेक सा शैडो जो आया हुआ है दांत के अराउंड, व्हाट डू यू थिंक दिस इज? It can be some increase bone due to the overloading of the premolar, increase bone density surrounding increased bone density in this region. अगर increase overloading होगी तो उससे तो cementum ज्यादा बनेगा ना, hypercementosis होगी या cementoma बनेगा. तो ये तो cementoma नहीं लग रहा ना, ये तो bone लग रही है. तो अगर bone में इस तरह कुछ होगा तो what do you think, what will you call that? Sclerosis हो सकती है. जी बिल्कुल. This is basically sclerosing osteitis है and this is bone basically अपनी density ज्यादा करता है in response to the periapical infection जो इस दांत के अराउंड आपको नजर आ रही है. तो ये chronic low grade infections जो होती है ना, जो बहुत टाइम तक पेशेंट बस दांत को चला रहा होता है अपने मुंह में, तो उसमें you will see such a picture कि the body is then trying to wall off the infection. तो वॉल ऑफ करने में वो उस इन्फेक्शन एरिया के अराउंड अपनी डेंसिटी ज्यादा कर लेता है ताकि इन्फेक्शन कहीं और स्प्रेड ना हो. तो दिस इज बेसिकली स्क्लेरोजिंग ऑस्टियाइटिस है. आपका डॉक्टर रोफक और एक दो और लोगों ने करेक्टली आइडेंटिफाई किए. सो इज देयर एंकाइलोसिस इन द एडजेसेंट टीथ? वेरी गुड क्वेश्चन. मुझे मीजियल साइड पे तो पीडियल लिगामेंट स्पेस नजर आ रही है, तो आई प्रॉब्ली थिंक कि शायद इसमें एंकाइलोसिस नहीं होगी, बट क्योंकि ये स्क्लेरोजिंग ऑस्टियाइटिस इज ऑल अराउंड द टूथ, तो इट इज डिफिकल्ट टू से. क्योंकि अगेन वही बात कि एक्सरे इज अ 2D पिक्चर ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट, तो आप कंफर्म नहीं कह सकते. ये तो जब पेशेंट को खुदा ना करे ये फर्स्ट प्रीमोलर निकालना पड़ेगा तब पता लगेगा कि भाई ये दांत बाकी एंकाइलोज्ड है या एंकाइलोज्ड नहीं है. सो इट्स डिफिकल्ट टू से in my opinion. ठीक है. अच्छा, I have 2 minutes before this meeting ends. तो अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो जल्दी पूछ लें and then I'll go ahead. जी. सर बोन पैथोलॉजी ये रिजॉल्व हो जाएगी आफ्टर एक्सट्रैक्शन? सॉरी, बोन पैथोलॉजी है, बोन एक्सेस बोन की है जो डेंसिटी इंक्रीज हो गई, उसको अगर हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं प्रीमोलर को, सेकंड प्रीमोलर को, रिजॉल्व हो जाएगी ये प्रॉब्लम? समवट कम हो जाएगी लेकिन सारी खत्म नहीं होती. स्क्लीरल बोन क्योंकि इज वेरी डेंस बोन, तो उसको रिजॉल्व करना काफी मुश्किल होता है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो कुछ ना कुछ कम हो जाएगी लेकिन बिल्कुल सारी नहीं खत्म होगी प्रॉब्लम. सर हीलिंग वगैरह इसमें नॉर्मल होगी या तो डिफरेंट होगी? सॉरी, एक्सट्रैक्शन पोस्ट एक्सट्रैक्शन हीलिंग जो है वो नॉर्मल होगी या डिलेड होगी? हाँ नॉर्मल होगी बिल्कुल. एक्सट्रैक्शन विल बी नॉर्मल. इनफैक्ट हो सकता है इसमें ब्लीडिंग कम हो बिकॉज स्क्लेरोटिक बोन इज वेरी डेंस बोन एंड डेंस बोन जो है वो ज्यादा ब्लीड नहीं करता. तो प्रॉब्ली देयर माइट इवन बी अ हायर चांस ऑफ ड्राई सॉकेट इन सच अ केस, क्योंकि इसमें वो ब्लड क्लॉट शायद बनेगा ही नहीं. तो दैट इज वन पॉसिबिलिटी. ठीक है. अच्छा, डॉक्टर लैला इज आस्किंग okay, what about end teeth, increased opacity, fused? आप डॉक्टर लैला, आर यू आस्किंग अबाउट दिस सेकंड प्रीमोलर? क्योंकि इसके पीछे तो कोई दांत नहीं है एक्सरे में. Condensing, yes, they are roughly the same, डॉक्टर नूराशा. ठीक है. इसकी एक्सट्रैक्शन सिंपल होगी प्रीमोलर की बिकॉज ये काफी मोबाइल होगा मेरे हिसाब से. 4 का कुछ नहीं कहा जा सकता. On the left, इसके लेफ्ट पे तो I'm sorry I'm not getting your question डॉक्टर लैला. आप प्रीमोलर की बात